کرناٹکا گلبرگہ شہر میں مرکزی سیرت کمیٹی کی جانب سے 1500واں یوم جشن میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم دھوم دھام سے عقیدت کے ساتھ منایا گیا۔ اس موقع پر شہر کے محلے جات سے اسلامی جھنڈیاں نکالی گئیں۔ ہر طرف عاشقان رسول کا ہجوم نظر آ رہا تھا۔ مرکزی سیرت کمیٹی کی جانب سے منعقدہ پروگرام میں گلبرگہ سٹی پولیس کمشنر شرنپا ڈی ایس آئی پی ایس نے حصہ لے کر میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم کے تعلق سے اپنے تاثرات پیش کیے۔ کانگریس کے جواں سال قائد فراز الاسلام حضرت سید شاہ علی الحسینی صاحب سجادہ نشین حضرت خواجہ بندہ نواز رحمۃ اللہ علیہ اور ریاستی وقف بورڈ چیئرمین نے جشن میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم پر اپنے خیالات پیش کیے۔ گلبرگہ شہر میں 1981 سے مرکزی سیرت کمیٹی کی جانب سے میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم کے جلسے کو منعقد کیا جا رہا ہے، جس کی شروعات مرحوم قمر الاسلام صاحب نے کی تھی۔ گلبرگہ ٹریفک پولیس نے اس موقع پر اپنے فرائض کو بخوبی انجام دیتے ہوئے ٹریفک کو کنٹرول کیا۔ بنگلور شہر کے پیلس گراؤنڈ میں بڑے پیمانے پر انٹرنیشنل عید میلاد النبی کانفرنس کے جلسے کا انعقاد کیا گیا، جس میں ریاستی وزیر اعلیٰ سدرامیا، نائب وزیر اعلیٰ ڈی کے شیو کمار، مائنورٹی منسٹر بی زیڈ ضمیر احمد خان نے حصہ لیا۔ تو آئیے دیکھتے ہیں تفصیلی رپورٹ۔ بیورو رپورٹ اطراف ٹی وی اردو نیوز۔ یہ قرآن شریف بھی ہے، اس میں کنڑا اور ہندی ہے، انگلش ہے، ہم لوگ وہ رسم اجرا کر رہے ہیں اس کا۔ پولیس کمشنر صاحب اور سجادہ نشین بارگاہ بندہ نواز اور مرکزی سیرت کمیٹی کے صدر وحد بابا صاحب جھنڈی بتانے کے بعد جلوس کا آغاز ہوگا، اس کے بعد گلپوشی اور شالپوشی ہوگا۔
ಪ್ರಥಮವಾಗಿ ವೇದಿಕೆ ಮೇಲೆ ಆಶೀರ್ವಾದ ಎಲ್ಲ ಗೌರವ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ತುಂಬ ಸಂತೋಷದಿಂದ ಈದ್ ಮಿಲಾದ್ ಹಬ್ಬವನ್ನು ಆಚರಿಸಲಿಕ್ಕೆ ಸೇರಿರುವ ಎಲ್ಲ ಬಾಂಧವರೇ, ಪ್ರಥಮವಾಗಿ ತಮ್ಮೆಲ್ಲರಿಗೂ ಈದ್ ಮಿಲಾದ್ ಹಬ್ಬದ ಶುಭಾಶಯಗಳು. आप सभी को ईद मिलाद मुबारक. ಈ ಹಬ್ಬ ತಮಗೆ ತಮ್ಮ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರಿಗೂ ಸುಖ, ಶಾಂತಿ, ನೆಮ್ಮದಿ, ಆರೋಗ್ಯ, ಆರ್ಥಿಕ ಬಲವರ್ಧನೆ ತರಲಿ. ತಮ್ಮೆಲ್ಲರ ಮಕ್ಕಳ ಭವಿಷ್ಯ ಉಜ್ವಲವಾಗಲಿ. ತಮ್ಮ ಎಲ್ಲರ ಜೀವನದಲ್ಲಿರುವ ಸಣ್ಣ ಪುಟ್ಟ ಕಷ್ಟಗಳಿದ್ದರೂ ಎಲ್ಲ ದೂರ ಆಗಲಿ. ತಮ್ಮೆಲ್ಲರ ಬಾಳಲ್ಲಿ ಬೆಳಕು ಬರಲಿ ಅಂತ ಆಶಿಸುತ್ತಾ, ಮತ್ತೊಂದು ಸಲ ನಾನು ವೈಯಕ್ತಿಕವಾಗಿ ಕಲಬುರಗಿ ನಗರ ಪೊಲೀಸ್ ವತಿಯಿಂದ ಮತ್ತು ಜಿಲ್ಲಾಡಳಿತ ವತಿಯಿಂದ ತಮ್ಮೆಲ್ಲರಿಗೂ ಹಬ್ಬದ ಶುಭಾಶಯಗಳನ್ನು ಕೋರುತ್ತೇನೆ. ಒಂದು ವಿನಂತಿ ಅಂತಂದರೆ, ತಾವೆಲ್ಲರೂ ತುಂಬ ಸಂತೋಷದಿಂದ ಜವಾಬ್ದಾರಿಯಿಂದ ಈ ಮೆರವಣಿಗೆಯಲ್ಲಿ ಪಾಲ್ಗೊಳ್ಳಿ. ನಿಮ್ಮಿಂದ ಬೇರೆ ಯಾರಿಗೂ ತೊಂದರೆ ಆಗೋದು ಬೇಡ. ಬೇರೆ ಯಾರಿಗಾದರೂ ಸಹಾಯ ಬೇಕಾದ್ರೆ, ಚಿಕ್ಕ ಮಕ್ಕಳಿದ್ದಾರೆ, ಹಿರಿಯ ನಾಗರಿಕರಿದ್ದಾರೆ, ಮಹಿಳೆಯರಿದ್ದಾರೆ, ಅವರಿಗೆಲ್ಲರನ್ನು ಸಂತೋಷದಿಂದ ಈ ಸಡಗರದಲ್ಲಿ ಪಾಲ್ಗೊಳ್ಳೋ ರೀತಿ ತಾವೆಲ್ಲ ಸಹಕಾರ ನೀಡಿ. ಇಲ್ಲಿ ಕಲಬುರಗಿ ನಗರ ನಾನು ನೋಡಿ ತುಂಬ ಸಂತೋಷ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. ಎಂಟೈರ್ ಸಿಟಿ ಒಂಥರ ಹಬ್ಬದ ವಾತಾವರಣದಲ್ಲಿದೆ. ಒಂದು ದೀಪಾಲಂಕಾರ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಲೈಟಿಂಗ್ ಅರೇಂಜ್ಮೆಂಟ್, ಎಲ್ಲ ಹೊಸ ಹೊಸ ಬಟ್ಟೆಗಳನ್ನು ಹಾಕೊಂಡು ಇಲ್ಲಿ ಬಂದಿದ್ದೇನೆ. ನೋಡಲಿಕ್ಕೆ ತುಂಬ ಸಂತೋಷ ಆಗುತ್ತೆ. ಈ ಹಬ್ಬ ಇನ್ನೂ ನೂರಾರು ವರ್ಷ ಇಲ್ಲಿ ಆಚರಣೆ ಆಗಲಿ. ಮತ್ತೊಂದು ಸಲ ತಮಗೆ ಹೇಳಿದಾಗೆ ಎಲ್ಲರ ಬಾಳು ಒಳ್ಳೆಯದಾಗಲಿ. ತಮ್ಮೆಲ್ಲರಿಗೂ ಮತ್ತೊಂದು ಸಲ ಶುಭಾಶಯಗಳು ಕೋರುತ್ತಾ, ಮತ್ತೊಂದು ಸಲ ಈದ್ ಮುಬಾರಕ್ ಆಪ್ ಸभी को. मैं सबसे पहले स्टेज पर तशरीफ फरमा मुफ्ती सैयद साहब, फराजुल इस्लाम साहब और हमारे सिटी के पुलिस कमिश्नर साहब, सारे हाज़रीन, जुलूस में शिरकत करने वाले सबको अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। जैसे आपने हमेशा इस जुलूस में शामिल होते रहे हैं, ये जुलूस की तारीख बहुत बड़ी है. अरसा दराज से इस जुलूस का अहतमाम मरकज़ी सीरत कमेटी के जरिए होते आया है. और ये तारीफ के काबिल इस वजह से है कि हमेशा ये जुलूस एक मिसाल पूरे कर्नाटक में रहा है और हमेशा अमन के साथ शुरू होता है और अमन के साथ खत्म होता है. ये ताउन सारे डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन का भी है जो हमेशा सबका साथ देती है. मैं डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन का भी शुक्रिया अदा करता हूँ और मरकज़ी सीरत कमेटी जो दिन रात मेहनत करती है इसके पीछे बहुत सारे लोग इसमें जुड़े हैं और सालों की मेहनतें होती हैं उसके पीछे. और आप सब जो उसमें शामिल होते हैं ये अपनी अकीदत का मुज़ाहरा है. तो मैं इस 1500 साला जश्न मीलाद नबी के मौके पर आप सबको सिर्फ यही कहूँगा, क्योंकि जुलूस में सबको निकलना है, कि हमारे नबी मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमेशा से ही पैगाम अमन देते रहे. आपकी पूरी ज़िंदगी एक मिसाल है, इसीलिए आपको रहमतुल लिल आलमीन कहा जाता है. रहमतुल लिल आलमीन का मतलब ये नहीं है कि रहमत सिर्फ मुसलमानों पर या सिर्फ इंसानों पर,
कि रहमत सारे आलमीन के लिए है, तो उनकी ज़िंदगी हमारे लिए एक उससे अच्छी कोई मिसाल हो नहीं सकती। उनकी हर छोटी सी बड़ी सुन्नत पर हमको अमल करने की कोशिश करने की ज़रूरत है। यानी कोशिश का मतलब ये है कि उठते कैसा थे, बैठते कैसा थे, खाते कैसा थे, पीते कैसा थे, लेटते कैसा थे, मिलते कैसा थे लोगों से बात कैसा करते, जवाब कैसा देते, सलाम कैसे करते। इस्लाम में जो सलाम कहना है सबसे पहली सुन्नत बताया सलाम करना है। सलाम करने का मतलब ये है वो एक दुआ है दूसरे सामने रहेगा, एक सलाम तो पीस का मैसेज जाएगा। तो ये सलाम करने से शुरुआत करने की ज़रूरत है। एक दूसरे को सलाम से मुलाकात कीजिए और उसके बाद बेशुमार सुन्नतें हैं उनको अमल में लाने की ज़रूरत है। जुलूस के एहतमाम में मैं समझता हूँ हम सबको चाहिए कि जुलूस को अमल के साथ कीजिए और बेहुरमती ना कीजिए। ये सरकार का मामला जब आ जाता है तो मैंने कल भी जलसे में यही फरमाया है कि जब कोई किसी को चाहता है तो हम उसके लिए कुछ भी कर सकते हैं। तो अल्लाह ताला के ये महबूब का सवाल है। तो जब अल्लाह ताला अपने महबूब को इतना ज़्यादा चाहता है कि उसकी बेहुरमती ना हो, वो एहतियात कीजिए आप लोग, क्योंकि जुलूस में जोश और जज्बा बहुत होता है, लेकिन एहतराम सबसे पहली चीज़ होना चाहिए। उसमें नाच गाना डीजे वगैरह को अवॉइड किया जाए और जो है एहतराम के साथ सुन्नी तरीके से उसको अमल करने की ज़रूरत है। जोश व खरोश नारों में लगाइए, जोश व खरोश नातों में लगाइए, दुरूद में लगाइए, सलाम में लगाइए। मेरी आप सबसे गुजारिश है। और ये आखिर में सबको 1500वां मीलादुन नबी आप सबको मुबारक। और साथ ही में आखिर में मैं अल्लाह ताला से दुआ करता हूँ कि सरकार के सदक़े, सरकार दो आलम के सदक़े और इस मीलाद के सदक़े हम सब की दुआओं को कबूल फरमाएँ, हम सब की मुश्किलों को दूर फरमाएँ और हम में जो बीमार है अल्लाह ताला उनको शिफा अता फरमाएँ, हम में जो गुज़र गए अल्लाह ताला उनकी मग़फ़िरत फरमाएँ, हमको गुनाह करने से बचाएँ और हमारे गुनाहों को माफ़ फरमाएँ। तो आखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। कमिश्नर ऑफ पुलिस डॉक्टर शन्नप्पा साहब, रहीम मिर्ची साहब, अहमद साहब, कदीर चोंगे साहब, वाहिद अली फातेह खानी साहब, वहाज बाबा साहब, मज़ार आलम खान साहब, आज़म साहब, नूरुल इस्लाम साहब, आसिफ साहब, हैदर बागवान साहब और मध्यपुर साहब, तमाम लोग जो स्टेज पर हैं और तमाम मरकज़ी सीरत कमेटी के तमाम ज़िम्मेदारान, मेरे दोस्तों, मेरे साथियों, छत पर सुन रहे मेरे माँ बहनों, अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि बरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह बहुत खुशी हो रही है। अल्हम्दुलिल्लाह आप जो देख रहे हैं, जो नज़ारा देख रहे हैं, जो खबर साहब ने एक बुनियाद रखी थी गुलबर्गा में मिलादुन नबी की, आज भी अल्हम्दुलिल्लाह वो बरकरार है। बहुत खुशी हो रही है, तमाम लोग आए हैं। कमिश्नर साहब को यही कहना चाहता हूँ, कमिश्नर साहब जब कमर साहब थे, खमरुल इस्लाम साहब थे, 1981 में स्टार्ट किए थे, अब तक अल्हम्दुलिल्लाह साथ गुजर जाने के बावजूद भी आज अल्हम्दुलिल्लाह देख रहे हैं जो तमाम लोग आए हैं मिलाद के लिए, हमारे आका के एक सेलिब्रेशन में, एक मिलादुन नबी हम जो मनाते हैं हर साल, आज तमाम लोग आए हैं। बहुत खुशी हो रही है। और ये जो काम कर रहे हैं साहब, द वर्क दैट डन, एक दो दिन का काम नहीं है, बहुत टाइम से ये लोग सजाते हैं। जो आप लोग झांकियाँ वाले आप जो देखेंगे और जो मॉडल्स बने हैं हर वक्त, लास्ट टाइम 190 मॉडल्स थे, इस बार 200 से ज़्यादा मॉडल्स बने हैं। और तमाम लोग जो झांकियाँ बनाने वाले हैं, जो गुलबर्गा को एक दुल्हन के जैसे सजाते हैं, तमाम लोगों का शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ और आप लोगों को मुबारकबाद देना चाहता हूँ। माशाल्लाह आप देख रहे हैं जो यहाँ पर आप लोगों ने सजाया है, और एक जो कमल साहब जो मकसद था एक यूनिटी का, गुलबर्गा को इत्तेहाद में रखने का, आज भी अल्हम्दुलिल्लाह वो यूनिटी बरकरार है तमाम लोगों में। कमल साहब की एक ही सोच थी कि मिलाद से मुझे इत्तेहाद बरकरार रखना है गुलबर्गा का। जो गुलबर्गा में तमाम लोग बिखर गए थे, कमल साहब वही चाहते थे कि मुझे इकट्ठा होकर सबको लेना है, हिंदू मुस्लिम सबको, सब लोग यहाँ पर आते हैं। हमारे हुजूर सिर्फ हमारे लिए नहीं आए थे,
सब मैनकाइंड के लिए आए थे। तो मैं यही कहना चाहता हूँ, और तमाम लोग जो आए हैं यहाँ पर, तमाम लोगों का शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ। इंशाल्लाह ये 46 मिलादुन नबी है हमारा इंशाल्लाह। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। आज जश्न ईद मिलादुन नबी 15वां साल मनाया जा रहा है बड़े ज़ोर और शोरों के साथ पूरे हिंदुस्तान के अंदर, पूरी दुनिया के अंदर। ये बड़े मसरत की बात है। और साथ ही साथ हमारे गुलबर्गा के अंदर आज 46वां जश्न मिलादुन नबी, जो इसकी बुनियाद, जो इसके बानी आली जनाब अलहाज मरहूम खमरुल इस्लाम साहब ने रखा था गुलबर्गा के अंदर, आज 46 साल से जो है बड़े शोर और ज़ोर से जो है और पूरे मोहब्बत और खुलूस से ये मैसेज दिया सो है गुलबर्गा से हमारे हिंदुस्तान को, पूरे जो गुलबर्गा के अंदर हम जो 46 साल से मना रहे हैं, गुलबर्गा से जो पूरे आवाज़ पूरे हिंदुस्तान में चले गई। आज पूरे आजू बाजू के गाँव में, खेड़ों में और शहरों में जो मनाया जाता है। तो उसी तरह खमरुल इस्लाम के बाद जो है हमारे जो है फराजुल इस्लाम जो है उनके बेटे जो है मनाते जा रहे हैं, उनके सदारत में है। और जनाब अलहाज अलीउल हुसैन साहब जो कर्नाटका वक्फ चेयरमैन और सजादा नशीन और हज़रत ख्वाजा बंदा नवाज गैसुदराज रहमतुल्लाह अलैह की जो है ज़ेरे निगरानी में, सरपरस्ती में और ज़ेरे निगरानी जनाब अनवरुल हक मोती सेठ के इसमें जो है ये हमारे गुलबर्गा से जो है जश्न मिलादुन नबी मनाया जा रहा है। आज सरकार की जो है आमद का दिन है, सरकार के जो है इस खुलूस का दिन है। लिहाजा जो है मैं सब शहर गुलबर्गा को और हिंदुस्तानियों को मैं जो है मुबारकबाद देता हूँ, जो हमारा जो है इस गुलबर्गा जो है शांति और अमन और सुकून के साथ जो हम जो ये जुलूस निकालते हैं। शुक्रिया। बस अल्लाह से दुआ गो हूँ मैं, हर शहर से, हर गांव से जो है वो लोगों के लिए दुआ करें, बस उनको भी जो है सब जो है ये होने का मौका मिले। और दूसरा जो है गुलबर्गा के अंदर जो है ऐसे अब जो है 2-3 सालों से देखा जा रहा है गणेश उत्सव और जो है मिलादुन नबी दोनों जो है एक साथ आ रहे हैं। उसमें हमारे पुलिस डिपार्टमेंट का, ACDC मैडम का वगैरह ये सब का जो है प्लानिंग के हिसाब से काम हो रहा है। ये गंगा और जमुना तहजीब का गुलबर्गा मिसाल दी जाती है। इसके साथ मैं अपनी बात अतराफ टीवी, हर बात सच के साथ। इस न्यूज को स्पॉन्सर किया है हिंदुस्तान में रियासत कर्नाटका के तारीखी शहर गुलबर्गा में सैयद बारे एजुकेशनल एंड चैरिटेबल ट्रस्ट एक फकीदुल मिसाल तालीमी कहकशां है, जिसके दामन में मुख्तलिफ दरख्शां सितारे मौजूद हैं जो बरसों से जहालत की तारीखी में शब रोज़ इल्म की रोशनी फैला रहे हैं।
वो चमकते सितारे हैं नेक्स्ट जनरेशन पीयू साइंस कॉलेज, अल करीम कॉलेज ऑफ स्कूल ऑफ नर्सिंग, सैयद अबू बकर सिद्दीक सैयद बारे कॉलेज ऑफ नर्सिंग, KBS कासिम बी साहिबा कॉलेज ऑफ फार्मेसी एंड फिजियोथेरेपी। यहाँ जदीद आलात से लैस लेबोरेटरीज में आला तालीम याफ्ता फैकल्टी जामे तालीम फराहम करते हैं। यहाँ इल्मी और अमली तजुर्बे के साथ तलबा और तालिबात के रोशन मुस्तकबिल के लिए महारत फराहम की जाती है। सैयद बारे एजुकेशनल एंड चैरिटेबल ट्रस्ट तलबा के लिए इल्म हासिल करने का एक मियारी और महफूज इदारा है जो नज़रिया और अमली तजुर्बे को मिलाकर हमारे तलबा को इनफरादी क़ुव्वत में कामयाबी के लिए ज़रूरी महारतें फराहम करता है। तलबा और तालिबात की आमद और रफ्त के लिए यहाँ बसेस का बेहतरीन इंतज़ाम है। अपने बच्चों का मुस्तकबिल रोशन करने के लिए सैयद बारे एजुकेशनल एंड चैरिटेबल ट्रस्ट के स्कूल्स एंड कॉलेजेस में दाखिला करवाएं। नाजरीन, आज हमारे सामने तशरीफ़ फरमा है शहर गुलबर्गा की कदावर और हमागीर शख्सियत माहिर तालीम सैयद बारे एजुकेशनल एंड चैरिटेबल ट्रस्ट के चेयरमैन जनाब सैयद अब्दुल रहीम सैयद बारे। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं सैयद अब्दुल रहीम सैयद बारे, चेयरमैन सैयद बारे एजुकेशनल एंड चैरिटेबल ट्रस्ट गुलबर्गा, बाशऊर और जिम्मेदार वालिदैन से मेरी अजीज़ाना गुजारिश है कि वो अपने बच्चों और बच्चियों को का दाखिला हमारे स्कूलों और कॉलेजों में करवा के उनका मुस्तकबिल रोशन करें। SAR फैंटेसी वाटर पार्क, सारे फैमिली का एंटरटेनमेंट, पिकनिक, हॉलिडे, वेकेशन, सबके लिए बेहतरीन वाटर पार्क। आप भी आइए, सबको लाइए। SAR फैंटेसी वाटर पार्क। Address: Veernakapur near Gaushavali Dargah, KGF, Karnataka. Contact details: 9483444290, 9480107826.